Hello dear student, welcome to the online platform of Perfect Tutorial Ranchi. Perfect Tutorial Ranchi के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है डियर स्टूडेंट। In this video session, you are going to learn the concept of circle diagram. इस वीडियो सेशन में आप सीखेंगे, जानेंगे सर्कल डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स को। से सर्कल डायग्राम is such a very important concept, the subset of three-phase induction machine that enables you to determine those parameters which are generally not mentioned on the name plate of induction machine. सर्कल डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जिसकी मदद से आप उन सभी पैरामीटर्स को डिटरमिन करने के काबिल होंगे, की जानकारी इकट्ठा करने के काबिल होंगे जो कि मशीन के नेम प्लेट पर जनरली मेंशन नहीं होते हैं। ओके, एंड with the completion of this short video session, this single video session, you will able to answer all the MCQs, all the problems that can be raised from the circle diagram concept in any competitive exam. Okay, so it become important to have the better understanding of the concept of circle diagram. See, for better understanding of circle diagram, let us consider an approximate electrical equivalent circuitry of three-phase induction motor. Three-phase induction motor का approximate electrical equivalent circuitry को consider करने जा रहे हैं for the analysis or for the better understanding of circle diagram. See please, I already have drawn here. This is your approximate electrical equivalent circuitry of three-phase induction motor. It comprises of shunt branch parameters and series branch parameters. In addition to them is one more element is there, that is the load equivalent electrical resistance. This variable resistance represents mechanical load equivalent variable resistance, that is referred to a stator side. All the parameters here are referred to stator side we have considered here. Okay, R01 comprises of R1 plus R2 dash. R2 dash is the rotor winding resistance per phase referred to stator side. X2 dash is the rotor winding leakage reactance per phase referred to stator side. See, R01 is approximately equal to R2 dash. Take into consideration here that R1 is much lesser than R2 dash or R2 dash is much greater than R1, so that R01 can be considered or approximately equal to R2 dash. We'll consider this particular assumption in our analysis. Okay, so that net resistance of this series branch would be equal to R01 plus R2 dash into 1 by S minus 1. And R01 को रिप्लेस कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन के तहत R2 dash के बराबर, that can be written as R2 dash approximately plus R2 dash into 1 by S minus 1. Okay. नेक्स्ट, अब बात करेंगे लोडिंग के वेरिएशन के साथ करंट I2 डैश का वेरिएशन किस तरह से होगा। आप जानते हैं with the variation in loading, the sweep value, the operating sweep value of the machine changes will vary. How the current variation would take place with the variation in loading, let us have the analysis here. So मान लेते हैं if S is equal to 0, सब S बराबर 0, ये कब संभव है? ऐसा सब NR NS के बराबर हो जाएगा। और तो इंडक्शन मशीन ऑपरेशन में ये कभी संभव नहीं है, NR NS के बराबर नहीं होता है। इंडक्शन मशीन इज asynchronous machine which always runs other than synchronous speed. So practically संभव नहीं है, but just for analysis we have considered a case where S is equal to 0 means NR equals to NS. That can be possible only under no load condition. Okay, जब S बराबर 0 होगा then ये लोड इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा?
R2 dash into 1 by 0 minus 1. 1 by 0 infinity minus something is infinity. So लोड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो इनफाइनाइट ओम हो जाएगा. इनफाइनाइट ओम का प्रैक्टिकल मतलब क्या है? It acts as open circuit element. So open circuit element की तरह काम करेगा. ये लोड रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये सीरीज ब्रांच जो है वो ओपन सर्किटेड ब्रांच का ही पार्ट होगा और कोई करंट इसके थ्रू नहीं फ्लो करेगा. सो दैट I2 डैश का वैल्यू जो है वो 0 एम्पियर होगा. I2 डैश 0 एम्पियर कहने का मतलब मशीन इज ऑपरेटिंग एट नो लोड कंडीशन. नाउ व्हाट अबाउट phi? Phi would be equal to tan inverse x01 by R net. R net यहाँ कितना? R net जो है ये इनफाइनाइट ओम हो गया. R net then infinity plus something is infinity only. अब tan inverse something by infinity is tan inverse 0 that will be equal to 0. So एंगल फेस एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा. जब s बराबर 0 है तो I2 डैश का वैल्यू 0 एम्पियर. इट्स मशीन इज ऑपरेटिंग एट नो लोड कंडीशन और फेज एंगल फाई जो है वो 0 डिग्री होगा. मींस करंट फेजर अगर आप ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो किसके अलोंग लाई करेगा और किसके इन फेज होगा? सप्लाई वोल्टेज के ही फेज में होगा. ओके, दूसरा केस कंसीडर करते हैं. इफ S इज इक्वल टू यूनिटी. S का वेरिएशन कर रहा है 0 टू इनफिनिटी. ओके, जब S बराबर यूनिटी होगा then what about R2 dash? R2 dash into 1 by S minus 1. ये 1 के बराबर हो जाएगा. 1 minus 1 0. So लोड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा. ये 0 हो गया मींस लोड टर्मिनल इज एक्टिंग एज शॉर्ट सर्किट एलिमेंट. ये शॉर्ट सर्किट एलिमेंट की तरह काम करेगा. लोड रेजिस्टेंस means what about I2 dash? I2 dash would be equal to applied voltage V1 divided by square root of R net square plus X01 square. R net कितना होगा? देखिए ये हो गया 0 means R not 1 के बराबर होगा R not 1 के बराबर होगा R net और R not 1 approximately R2 dash के बराबर है. So you can write R2 dash square plus X not 1 square. Means I2 dash का वैल्यू जो है वो फाइनाइट होगा. नेक्स्ट what about phi? Phi equals to tan inverse X not 1 divided by R2 dash. Means ये भी फाइनाइट एंगल होगा जो कि 0 डिग्री से ज्यादा होगा. अब इसकी 90 डिग्री से कम होगा. नेक्स्ट तीसरा केस कंसीडर करते हैं. इफ S इज इक्वल टू इनफिनिटी. S इज इक्वल टू इनफिनिटी पॉसिबल एट द एंड ऑफ ब्रेकिंग. सी ब्रेकिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में स्लिप का जो वेरिएशन होता है दैट रेंजेस फ्रॉम व्हाट 1 टू इनफिनिटी. S इज इक्वल टू 1 से S इज इक्वल टू इनफिनिटी तक का स्लिप का वेरिएशन होता है और स्लिप का रेंज होता है इन ब्रेकिंग मोड ऑफ ऑपरेशन. वही अगर मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें, आप जानते हैं स्लिप का वेरिएशन जो है वो 0 से 1 तक होता है. जनरेटिंग मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें, स्लिप का वेरिएशन जो है वो माइनस इनफिनिटी टू 0 होता है और 0 टू माइनस इनफिनिटी होता है. स्लिप नेगेटिव होता है फॉर जनरेटिंग मोड ऑफ ऑपरेशन. ओके, सो इफ S इज इक्वल टू इनफिनिटी देन व्हाट अबाउट I2 dash? See, before I2 dash, you please see what about the load equivalent resistance. So load equivalent resistance जो है R2 dash into 1 by infinity minus 1. 1 by infinity is something by infinity is 0 only. So इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? R2 dash into 1 by s minus 1 that would be equal to minus R2 dash. Okay, ये हो जाएगा minus R2 dash के बराबर माइनस R2 डैश के बराबर और प्लस कौन जुड़ेगा? ये हो जाएगा R2 डैश. देन R नेट कितना हो जाएगा? R नेट वुड बी इक्वल टू 0. R नेट जो है वो 0 के बराबर होगा. कब? जब S बराबर इनफिनिटी होगा. मींस एट द एंड ऑफ ब्रेकिंग नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज ब्रांच वुड बी इक्वल टू 0. सो R नेट 0 हो गया. R नेट 0 मींस
इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x01 स्क्वायर टू बी इक्वल टू x01 ओनली। नेट रेजिस्टेंस 0 हो गया, मींस I2 डैश कितना होगा, अप्लाइड वोल्टेज V1 डिवाइडेड बाय x01 मैग्नीट्यूड। ओके, देन व्हाट अबाउट फेज एंगल फाई? फेज एंगल फाई जो है वो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। लेट्स सी हाउ इट इज 90 डिग्री। सर्किट क्या हो गया, प्योरली इंडक्टिव हो गया। नेट रेजिस्टेंस 0 हो गया, सर्किट प्योरली इंडक्टिव हो गया। करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगा। हाउ डू यू सी द मैथमेटिकल एनालिसिस हियर? tan इनवर्स x01 डिवाइडेड बाय r नेट। r नेट कितना हो गया, r नेट 0 हो गया, मींस tan इनवर्स समथिंग बाय 0 इज tan इनवर्स इनवर्स दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो करंट जो है उसका वैल्यू होगा और मैग्नीट्यूड होगा V1 by x01 और फेज एंगल 90 डिग्री होगा, मींस करंट लैग करेगा 90 डिग्री से। किससे लैग करेगा, अप्लाइड वोल्टेज से लैग करेगा। अब देखिए स्लिप का वेरिएशन आप देखें और स्लिप के वेरिएशन के साथ करंट मैग्नीट्यूड और फेज एंगल का वेरिएशन किस तरह से हो रहा है आप ऑब्जर्व बखूबी कर पा रहे होंगे। आप ये देख रहे हैं कि जब स्लिप का वेरिएशन 0 टू इनफिनिटी कर रहे हैं, देन करंट का मैग्नीट्यूड भी ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड करंट I2 डैश का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो V1 by x01 के बराबर है और मैक्सिमम फेज एंगल जो है वो 90 डिग्री है। मींस with the variation of the slip from 0 to infinity, current I2 dash magnitude increases and simultaneously the phase angle also increases. So स्लिप S के वेरिएशन के साथ स्लिप S को जब इंक्रीज कर रहे हैं 0 से इनफिनिटी की तरफ, देन I2 डैश करंट और रोटर इक्विवेलेंट करंट भी इंक्रीज हो रहा है। उसके साथ साथ करंट का जो फेज एंगल है सप्लाई वोल्टेज के साथ उसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। कहां से कहां तक वेरी कर रहा है फेज एंगल, जब S को 0 से इनफिनिटी का वेरिएशन कर रहे हैं तो फेज एंगल का वेरिएशन 0 से 90 डिग्री है, जहां पर 0 जो है वो इस बराबर 0 पर है और 90 डिग्री फेज एंगल जो है जब S इनफिनिटी के बराबर है। ओके, सो इस I2 डैश करंट वेरिएशन को डिपिक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाउ द I2 डैश एक्चुअली इज वेरिंग हियर। Say, if you draw the tip of I2 dash, अगर आप I2 dash के वेरिएशन के टिप को ट्रेस करेंगे, जिस पाथ से I2 dash के टिप का वेरिएशन हो रहा है उस पाथ को आप ट्रेस करेंगे, you will obtain a semicircle. Means the path traced by the tip of I2 dash current phasors with a variation of slope from 0 to infinity, it will form a semicircle where the diameter of semicircle is equal to the maximum magnitude of the current phasor that is possible at S is equal to infinity, and that is equal to supply voltage divided by x01 or net reactance referred to stator side. Okay, so if it is your voltage phasor V1, then I2 का जो वेरिएशन है I2 के करंट लोकस को अगर देखें, देन क्या है, सेमी सर्कल फॉर्म करता है। दिस व्हाट योर सेमी सर्कल फॉर्म्ड by the current locus of I2, means I2 डैश करंट जो है वो 0 है जब S बराबर 0 है, और S को जब आप इंक्रीज कर रहे हैं लाइक 0.25 कर रहे हैं S को, देन करंट इंक्रीज हो रहा है, फेज एंगल भी बढ़ रहा है। इस तरह S बराबर सपोज 1 आप कर रहे हैं, देन करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है और फेज एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। इस बराबर अगर आप इन्फिनिटी रख रहे हैं, देन करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है और करंट का वैल्यू V1
V1/x01 के बराबर और फेज एंगल V1 के साथ कितना 90 डिग्री का। सो दिस इज व्हाट द वेरिएशन ऑफ और this is how the I2 dash current or rotor equivalent current varying with variation in slip value S। मीन स्लिप वैल्यू S को अगर आप वेरी कर रहे हैं 0 से इनफिनिटी तक, देन जो I2 dash करंट का वेरिएशन हो रहा है उसका लोकस जो है वो सेमी सर्कल है। सो दिस इज व्हाट लोकस ऑफ I2 dash करंट और रोटर इक्विवेलेंट करंट रेफर टू स्टेटर साइड। ये सभी करंट फेजर ही हैं, अलग अलग स्लिप पर करंट फेजर I2 डैश ही हैं। लाइक दिस इज योर I2 डैश करंट एट S is equal to 0.25, दिस इज योर I2 डैश करंट एट S equal to 1, दिस इज योर I2 डैश करंट एट S is equal to इनफिनिटी। उसी तरह से अगर आप I2 डैश करंट का वेरिएशन नेगेटिव रीजन ऑफ स्लिप में देखें, अगर उसका भी एनालिसिस आप करें, then you will obtain again a semicircle that would be the mirror image of this particular semicircle, and that would be in generating mode of operation. So this entire diagram will form what? The circle। एक सर्कल का फॉर्मेशन होगा एंड ये कब पॉसिबल होगा? स्लिप का वेरिएशन 0 से S इक्वल टू माइनस इनफिनिटी तक का वेरिएशन किस में पॉसिबल, किस मोड ऑफ ऑपरेशन में पॉसिबल है? जनरेटिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में संभव है। सो दिस इज व्हाट द जनरेटिंग मोड ऑफ ऑपरेशन, जनरेटिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में संभव है इसका वेरिएशन 0 से इनफिनिटी तक, सॉरी 0 से माइनस इनफिनिटी तक। नेक्स्ट मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करें, देन इसका वेरिएशन जो है वो 0 से 1 तक हो सकता है। This is what the region of motoring mode of operation। उसी तरह से पर इसका वेरिएशन की बात करें 1 से इनफिनिटी, then that will represent the braking mode of operation। So this is your braking region of operation where slip varies from S to S equal to 1 to infinity। Okay, so this is what about the variation of I2 dash with the variation of slip। So slip के वेरिएशन के साथ I2 dash का वेरिएशन आप देखें। Okay, so up to this analysis you have seen how the rotor equivalent current is varying with the variation in slip value S। लोडिंग को वेरी करने से या स्लिप वैल्यू S के वेरिएशन से करंट I2 डैश में किस तरह से वेरिएशन हो रहा है, आप इस एनालिसिस को बखूबी देखे हैं। सो रोटर इक्विवेलेंट करंट फॉर्म्स और लोकस ऑफ रोटर इक्विवेलेंट करंट फॉर्म्स a semicircle or you say circle if you consider all the three modes of operation and see this is what the circle diagram। So circle diagram is nothing but the current locus diagram and किसका current locus diagram? rotor equivalent current का ही current locus diagram। So circle diagram of three-phase induction machine is basically a current locus diagram which represents different loading conditions put on the shaft of the machine in all modes of operation। So circle diagram basically rotor equivalent current का current locus diagram ही है जो कि डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है मशीन के सभी मोड्स ऑफ ऑपरेशन में, और जिसकी मदद से आप सेवरल पैरामीटर्स का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इस हम लोग देखेंगे। प्लीज स्टे ट्यून हियर। सो सी प्लीज नाउ हम लोग सभी का वेरिएशंस देखेंगे एंड नाउ विल ड्रॉ द कंप्लीट फेजर वेयर विल कंसीडर I0 and I1 also along with I2 dash variation। Okay, so vertical axis के अलावा कंसीडर कर रहे हैं V1 phasor। This is your V1 phasor। Next
अप्लाइड वोल्टेज से आई नॉट फेजर जो है वो लैग करेगा 80 to 85 डिग्री, you know, no load component of the current lags behind the applied voltage in induction machine by 80 to 85 degree. So I naught phasor जो है वो लैग करेगा. This is your I naught phasor. If you apply KCL at this particular node, you can write I1 phasor is equal to I naught phasor plus I2 dash phasor. सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन के तहत आप I1 फेजर का डिटरमिनेशन कर सकते हैं एंड आप डिटरमिन कर सकते हैं हाउ मच करंट ऑफ द सप्लाई इज टेकन बाय द मोटर फ्रॉम सप्लाई. ओके, सो I नॉट है, I2 डैश का वेरिएशन आप जानते हैं, सभी क्या है I2 डैश का ही वेरिएशन है. दिस इज व्हाट द लोकस ऑफ द I2 डैश वेरिएशन विद द वेरिएशन इन स्लिप. सो I2 डैश का वेरिएशन आप ड्रॉ करेंगे, यहां पर बना लेते हैं इसी के पैरेलल V1 के पैरेलल यहां भी V1 को ड्रॉ कर देते हैं. सो I2 डैश locus forms a semicircle if you consider only motoring and braking mode. अगर जेनरेटिंग भी कंसीडर करेंगे तो कंप्लीट सर्कल. जेनरेटिंग अभी कंसीडर नहीं कर रहे हैं. ओके, and where the diameter of this circle or semicircle represents the maximum magnitude of the rotor equivalent current given by V1 by x01. ये diameter of circle क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रोटर इक्विवेलेंट करंट कितना के बराबर? अप्लाइड वोल्टेज बाय x01 के बराबर. ओके, नेक्स्ट अब डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट्स कंसीडर करते हैं. एट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ स्लिप if there would be the different operating points you can consider. पहले नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं O. this is your origin, this is your point A. A पॉइंट पर स्लिप कितना? S is equal to 0. इसका नाम देते हैं स्टैटिक का B. स्लिप कितना? S is equal to infinity. At S is equal to infinity, current phasor lags behind the applied voltage by 90 degree. At S is equal to 1, current is equal to 0 and that is in phase to V1. Okay, next at S is equal to say 0.25, एक ऑपरेटिंग पॉइंट कंसीडर करते हैं. लेट्स से दिस इज योर पॉइंट P where S is equal to 0.25. Okay, next you consider another operating point at S is equal to unity. Let's say this is your C point at S is equal to unity. See, अगर आप ज्वाइन करेंगे OP को ज्वाइन करेंगे that will give current I1 when slip S is equal to 0.25. So this would give your current I1 when slip S is equal to 0.25. So I1P बोल देते हैं, means current drawn by the motor from supply at operating point P. उसी तरह से अगर आप O से ज्वाइन करेंगे C को, then आपको क्या मिलेगा? This will give you your supply current when slip S is equal to unity. So इसको बोल सकते हैं I1C बोल सकते हैं, OC लेंथ को. ओके, नेक्स्ट एक हॉरिजॉन्टल का लाइन आप ड्रॉ करेंगे फ्रॉम ओरिजिन दैट वुड रिप्रेजेंट द इनपुट पावर लाइन. क्यों इसको इनपुट पावर लाइन बोलेंगे और बोलते हैं, आप इसे देखेंगे समझेंगे. सो दिस इज योर इनपुट पावर लाइन. क्यों कहते हैं इसकी चर्चा करेंगे. दिस इज योर इनपुट पावर लाइन. दिस इज your horizontal line drawn from origin. Okay, that is in quadrature to V1. Next up, at point C स्लिप वैल्यू कितना करेंगे? यूनिटी के बराबर. एट पॉइंट C स्लिप वैल्यू यूनिटी. स्लिप वैल्यू यूनिटी मतलब रोटर जो है लॉक्ड है, लॉक्ड रोटर कंडीशन है, और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के दौरान रोटर लॉक्ड होता है. सो ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उस समय का स्लिप V1 होता है, और ये कंसीडर लॉक्ड रोटर कंडीशन है, और रोटर इज एट अ स्टैंड स्टिल कंडीशन. रोटर जब रुका हुआ है मींस लोड को रन नहीं किया जा रहा है, तब जो कुछ भी पावर लेगा
मशीन सप्लाई से वो क्या करने के लिए लेगा? दैट इज ओनली टू सेटिस्फाई लॉसेस अकरिंग इन द मशीन। अब मशीन में होने वाले लॉसेस क्या क्या होंगे? वेरिएबल लॉसेस होंगे और फिक्स लॉसेस होंगे। फिक्स लॉसेस में आपका कोर लॉसेस एंड फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस होगा। वेरिएबल लॉसेस में मेजर वेरिएबल लॉसेस की बात करें देना स्टेटर वाइंडिंग लॉसेस होगा और रोटर वाइंडिंग लॉसेस होगा। मींस स्टेटर कॉपर लॉस होगा और रोटर कॉपर लॉस होगा, ये दोनों वेरिएबल लॉस में इंक्लूड होंगे। एंड फिक्स लॉसेस में कोर लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस इंक्लूड होंगे। ओके, सो व्हेन S is equal to 1, whatever the power that is drawn by the motor from supply, that is only to satisfy losses in the machine. So गौर करिएगा at point C पर, C पर जो कुछ भी और C ऑपरेटिंग पॉइंट पर मशीन जो कुछ भी पावर ड्रॉ करेगा only to satisfy losses in the machine, and there will be no output power as it is not running the load. Rotor is at a standstill condition, rotor is locked. अब ये भी बात आप पूरी समझिएगा। V1 जो है यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया गया है। V1 here is on vertical axis. So V1 के अलोंग जो I1 का कंपोनेंट होगा और जो करंट का कंपोनेंट होगा, that will be the cost component, that will be the active component. You know, the component of current along the voltage phasor is active component. The component of current in quadrature to the voltage phasor is your reactive component. Is your reactive component, that is the sign component. So I1 का this is your I1C बोल देते हैं। I1 at operating point C. I1C का जो vertical component होगा वो क्या देगा? That will be the active component and the length of the vertical component of the current on power scale would represent active power. देखिए इस बात को समझिएगा प्लीज। You know P is equal to VI cos phi. See V is fixed. आप वोल्टेज को क्या माने? फिक्स्ड माने। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को फिक्स्ड माने थ्रू आउट द एनालिसिस। वोल्टेज फिक्स है तो एक्टिव पावर किसका प्रोपोर्शनल होगा? I cos phi का प्रोपोर्शनल होगा। अब पावर फैक्टर एंगल जो है क्या है? पावर फैक्टर एंगल इज नथिंग बट एंगल बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट फेजर। सो अगर I1C का पावर फैक्टर एंगल कंसीडर करें, देन दिस इज योर पावर फैक्टर एंगल phi C बोल देते हैं। दिस योर व्हाट योर पावर फैक्टर एंगल? पावर फैक्टर एंगल phi C व्हेन स्लिप AC is equal to unity। देना इस I1C का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? I1 cos phi C. So V1 multiplied by I1 cos phi C is nothing but active power drawn by the motor when slip AC is equal to unity or at operating point C, where slip AC is equal to unity. So क्या बोलेंगे? Active power is proportional to I cos phi. और यहां पर cos कंपोनेंट जो है करंट का क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है। क्यों वर्टिकल कंपोनेंट? क्योंकि वोल्टेज फेजर जो है वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग है। यू नो द करंट फेजर अलोंग द वोल्टेज फेजर इज योर एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट एंड द करेस्पॉन्डिंग पावर रिप्रेजेंट्स और प्रोपोर्शनल टू एक्टिव पावर। ओके, सो सी से अगर कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे टू दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीटिंग एट लेट्स से D, देन दिस CD क्या रिप्रेजेंट करेगा? CD लेंथ ऑन पावर स्केल वुड रिप्रेजेंट टोटल एक्टिव पावर ड्रॉन बाय द मोटर व्हेन स्लिप S is equal to unity or when rotor is locked। अब ये टोटल पावर क्या होगा? उसमें आउटपुट पावर तो होगा नहीं, पूरा का पूरा पावर लॉसेस ही होगा ना। अब लॉसेस में क्या होगा? फिक्स लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस। ये नाम देते हैं AB को इंटरसेक्ट कर रहा है लेट से E पॉइंट पर, तो ED लेंथ जो है वो फिक्स्ड लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिक्स्ड लॉसेस ऑन पावर स्केल। ओके, बाद में हम स्केल की बात करें, पावर स्केल की बात करें। पावर स्केल की चर्चा पहले कर लेते हैं। देखिए प्लीज, पावर स्केल जब स्लिप S बराबर 1 होगा
रोटर लॉक्ड होगा। आप ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट कंडक्ट करते हैं जहां पर वाटमीटर का जो रीडिंग होता है वो का टोटल पावर टेकन बाय द मोटर होता है जब स्लिप एस 1 के बराबर होता है। लेकिन गौर करिएगा, when blocked rotor test is being conducted, you have to apply reduced voltage but not the rated voltage। जब blocked rotor test आप कंडक्ट करते हैं तो rated voltage अप्लाई नहीं करते हैं, reduced voltage अप्लाई करते हैं। that can be sufficient to flow the rated current to the windings of the machine। so blocked rotor test का जो आपके पास डेटा होगा, वाटमीटर का जो रीडिंग होगा, वो रीडिंग जो है that reading would be corresponding to the reduced voltage। बट यहां पर जो पावर लेगा मोटर जो पावर लेगा स्लिप एस बराबर 1 पर, वो रिड्यूस्ड वोल्टेज पर या रेटेड वोल्टेज पर? रेटेड वोल्टेज पर। सो रेटेड वोल्टेज पर आप पावर कैलकुलेशन कर लेंगे विद अवेलेबल डेटा ऑफ ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। सपोज ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में वाटमीटर का रीडिंग है WSC, अप्लाइड वोल्टेज है VSC, देन you know power is proportional to a square of the voltage। so new power W new when are corresponding to rated applied voltage would be equal to V1 by VSC whole square multiplied by volt power, that is your WSC। ये कहां से मिलेगा आपको डेटा? ये ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के वाटमीटर से रीडिंग से डेटा मिलेगा। VSC ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में जो रिड्यूस्ड अप्लाइड वोल्टेज है V1 क्या है? V1 इज योर रेटेड अप्लाइड वोल्टेज। सो दिस इज योर W न्यू। अब W न्यू क्या हुआ? दिस इज द पावर टेकन बाय द मोटर व्हेन स्लिप S इज इक्वल टू 1 एंड that is at rated applied voltage। okay, that is what we require to know here। so CD लेंथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पावर, ये W न्यू को रिप्रेजेंट करेगा कौन? CD लेंथ। सो पावर स्केल को डिफाइन कर रहे हैं, देन W न्यू पावर स्केल would be equal to W न्यू divided by CD length in centimeter। so ये आएगा something watt per centimeter। so this is what your power scale you have to define। power scale आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, that would come as some watt per centimeter। okay, so CD length क्या है? CD length multiplied by this power scale gives you the total losses occurring in the machine when slip S is equal to unity or when rotor is locked। okay, और भी टेस्ट आपको क्या कंडक्ट करना पड़ेगा? I नॉट मालूम करने के लिए दूसरा टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा, दैट इज द नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट भी कंडक्ट करना पड़ेगा सो दैट आई नॉट की जानकारी आपको मिल जाएगा। ओके, सो सर्कल डायग्राम बनाने के लिए आपको दोनों टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा। कौन कौन? नो लोड टेस्ट एज वेल एज ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट की जानकारी आपको जरूरत होगा क्या जानने के लिए? और स्केल डिफाइन करने के लिए जरूरत होगा, और नो लोड टेस्ट कंडक्ट करने की जरूरत है क्या जानने के लिए? इस आई नॉट का वैल्यू जानने के लिए। इस ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट की मदद से और भी पैरामीटर आप डिटरमाइन कर सकते हैं, लाइक फाई एससी मींस जो पावर फैक्टर एंगल होगा एट स्लिप एस इज इक्वल टू 1, वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। कहां से? ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। आईएससी, ये जो ओसी का लेंथ है ये डिटरमाइन कर सकते हैं आईएससी। सो आईएससी जो होगा और I1 at S is equal to 1, देखिए I1 at S is equal to 1, that would be equal to ISC corresponding to or ISC when applied voltage V1 or V supply is equal to V1। I1 कितना होगा? I1 when S is equal to unity is equal to ISC। आपको मालूम होगा अमीटर का रीडिंग, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में जो अमीटर का रीडिंग होगा वही ISC होगा। सो C is equal to what? It is proportional to applied voltage or not? Proportional to applied voltage। So applied voltage by VSC
multiplied by ISC of the blocked rotor test or of ammeter reading in blocked rotor test. So this is what your I1 value means OC का जो लेंथ होगा वो आप ड्रिवन कर सकते हैं कहां से, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट से ही, बट आपको कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में जो आप टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो रिड्यूस्ड वोल्टेज पर करते हैं, सप्लाई वोल्टेज मींस रेटेड सप्लाई वोल्टेज पर नहीं करते हैं। ओके, सो आपको ड्रिवन करना पड़ेगा यहां पर रेटेड सप्लाई वोल्टेज पर करेस्पॉन्डिंग करंट कितना होगा। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं ये सी लेंथ ऑन पावर स्केल क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल लॉसेस को। सी लेंथ ऑन पावर स्केल वेरिएबल लॉसेस को, वेरिएबल लॉसेस में है रोटर कॉपर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस। ओके, अब देखिए रोटर कॉपर लॉस बाय अ स्टेटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू I2 स्क्वायर R2 डिवाइडेड बाय I1 स्क्वायर R1। इसी को लिख सकते हैं R2 बाय K स्क्वायर इंटू R1। K स्क्वायर लिख दिए क्या, I2 बाय I1 को लिख दिए K, I2 बाय I1 होल स्क्वायर को K स्क्वायर लिख दिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, सो दैट यू कैन राइट दैट इज इक्वल टू R2 डैश बाय R1। सो रोटर कॉपर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस किस रेशियो में डिवाइडेड है, दैट इज इन द रेशियो ऑफ, दैट इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ R2 डैश बाय R1। R2 डैश और R1 मींस रेजिस्टेंसेस का वैल्यू आपको मालूम होगा, रेजिस्टेंस टेस्ट भी आपको करना पड़ेगा, सो दैट रेजिस्टेंसेस आपको मालूम होना चाहिए। ओके, सो R2 डैश और R1 का वैल्यू मालूम तो रोटर कॉपर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस को आप डिवाइड कर सकते हैं। सी लेंथ में क्या क्या छुपे हुए हैं, सी लेंथ ऑन पावर स्केल रिप्रेजेंट्स टोटल वेरिएबल लॉस व्हिच इंक्लूड्स रोटर कॉपर लॉस प्लस स्टेटर कॉपर लॉस। लेट अस डिवाइड दिस रोटर कॉपर लॉस एंड स्टेटर कॉपर लॉस इन टू पार्ट्स in the ratio of R2 dash is to R1. So let us consider a line, let's say AF line which divides C in the ratio of R2 dash is to R1. ये R2 dash is to R1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, so that ये CF length on power scale will represent the rotor copper loss and FE length on power scale will represent stator copper loss. Okay, अब देखिए ये तो रहा बात at point C when slip AC is equal to unity। अब किसी ऑपरेटिंग पॉइंट पर बात करते हैं जब नॉर्मल कंडीशन में इंडक्शन मशीन ऑपरेट होगा, पर्टिकुलरली मोटरिंग मोड में ऑपरेशन जो होता है स्टेबल ऑपरेशन, दैट इज व्हेन मशीन इज or when motor is running near to synchronous speed, means near to zero sleep region. In low sleep region motor operation is said to be a stable region of operation or a stable operation. So let us consider an operating point of the practical induction machine is motoring mode, that is when sleep S is equal to 0.25, let's say just मान रहे हैं जब मशीन का ऑपरेशन हो रहा है और मोटर रन कर रहा है जिसमें स्लिप 0.25 के बराबर है, उस समय की क्या स्थिति है, उस समय के पैरामीटर्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं बाय हैविंग द सर्कल डायग्राम। सो कंसीडर कि S बराबर 0.25, लेट्स से दिस इज एट पॉइंट P, दिस इज योर I2 डैश करंट व्हेन S इज इक्वल टू 0.25, दिस लेंथ OP लेंथ इज I1 करंट व्हेन S is equal to 0.25। अब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे P से मीटिंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एट T। दिस PT length will represent what? This PT length will represent total input active power. Total input active power. So PT length on power scale will represent total input active power. Next, what about your this QT नाम दे रहे हैं, ये PT लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AC को लेट्स से एट Q, AF को R पर
AB को S पर, then QT length on power scale represents total losses. QT length represents total losses. जहां पर QR जो है वो रोटर कॉपर लॉस, RS जो है ऑन पावर स्केल रिप्रेजेंट्स स्टैटर कॉपर लॉस, ST जो है वो फिक्स लॉस. देखिए हर एक जगह फिक्स लॉस बराबर है, ST जो है वो फिक्स लॉस. ओके, सो PT represents here total active input power. PT on power scale you have to say. अब बताएंगे QT टोटल लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. टोटल लॉसेस जो है अगर घटाएंगे आप PT में, मींस टोटल इनपुट माइनस लॉसेस इज नथिंग बट आउटपुट पावर. सो दिस PQ रिप्रेजेंट्स आउटपुट पावर. PQ means output power plus losses gives you total input power. So QP represent or PQ on power scale will represent total output power or simply mechanical developed output power. Okay, so इस सर्कल डायग्राम से यहां पर आप डिटरमाइन कर सकते हैं डायरेक्टली. PQ लेंथ को मेजर करेंगे, पावर स्केल से मल्टीप्लाई करेंगे, आप पाएंगे आउटपुट पावर व्हेन स्लिप S इज इक्वल टू 0.25. कोई भी स्लिप पर आप कर सकते हैं इसी तरह से. यहां पर 0.25 स्लिप पर कंसीडर कर रहे हैं. ओके, उसी तरह से QR लेंथ को मेजर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पावर स्केल से, आप पाएंगे रोटर कॉपर लॉस. RS लेंथ को मेजर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पावर स्केल से, आप पाएंगे स्टैटर कॉपर लॉस. ST लेंथ को मेजर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पावर स्केल से, आप पाएंगे फिक्स्ड लॉसेस. ऑल्दो फिक्स्ड लॉसेस किसी भी स्लिप पर रिप्रेजेंट करेंगे ये कांस्टेंट होगा, ये फिक्स्ड होगा. ओके, OT लेंथ जो है विल रिप्रेजेंट टोटल इनपुट रिएक्टिव पावर टेकन बाय द मोटर when S is equal to 0.25. So total reactive power OT length को आप मेजर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पावर स्केल से, इस will get total reactive input power when slip S is equal to 0.25 here. Okay, अब आपको पावर फैक्टर मेजर करना है इसी ऑपरेटिंग स्लिप पर. This is what cos of power factor angle. This is your power factor angle. Let's say phi p, power factor angle at operating point P. So operating power factor angle जो है वो phi p है. Cos of phi p would be the power factor, operating power factor. So ये एंगल जो है यहाँ पर भी एंगल बराबर होगा, this is your phi p. Cos of phi p, let's see this triangle. Let us consider this triangle OPT. Base by hypotenuse would be your cos phi. So this is your base of this right angle triangle OPT. That is a PT length by OP length. PT length को डिवाइड करेंगे OP लेंथ से, क्या मिलेगा? इनपुट पावर फैक्टर मिलेगा और सिंपली ऑपरेटिंग पावर फैक्टर मिलेगा. नेक्स्ट, स्लिप का वैल्यू की जानकारी चाहिए. स्लिप सपोज मालूम नहीं, उल्टा बात कर, स्लिप मालूम नहीं, किसी भी ऑपरेटिंग पॉइंट रैंडमली कोई ऑपरेटिंग पॉइंट चूज किए, वहां का स्लिप मालूम नहीं और बाकी डिफरेंट पैरामीटर्स आपको मालूम है, स्लिप मालूम करना है. स्लिप कैसे डिफाइन करेंगे? यू नो फर्स्ट रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू S इंटू PAG. रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू S इंटू PAG. PAG इज रोटर इनपुट पावर. So S is equal to rotor copper loss by PAG. S is equal to rotor copper loss by PAG. So rotor copper loss आपको मालूम, rotor copper loss is QR. So this is nothing but QR length divided by PAG. PAG गौर करिए, PAG means rotor input power. Rotor input power means rotor copper loss plus output power means PR length. This is your PR length. QR length by PR length
अगर आप कैलकुलेट करेंगे क्या मिलेगा, स्लिप का वैल्यू मिलेगा। ओके, नाउ कैन आल्सो डिटरमिन द वेरियस अदर पैरामीटर्स लाइक efficiency of the machine. There is a efficiency, you know, efficiency is equal to output power by input power. So output power यहाँ पर कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज योर आउटपुट पावर। किसी भी खास स्लिप पर हम डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि स्लिप 0.25 पर ऑपरेटिंग पॉइंट पी का लिए हैं, जहां पर स्लिप 0.25 है, उसी पर आउटपुट पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। PQ length on power scale represents output power. So this will be equal to PQ length divided by input power की बात करें, total input power is PT length. This will be your per unit efficiency, परसेंटेज निकालना होगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। So PQ length by PT length here would represent the percentage efficiency. So this is how you can able to determine the various parameters with the help of circle diagram. So आपको ध्यान रखना है कई पॉइंट्स। सर्कल डायग्राम क्या है? So circle diagram is basically a current locus diagram of rotor equivalent current representing various load conditions in all modes of operation. With the help of circle diagram, you can able to determine various parameters which are generally not mentioned on the nameplate of induction machine. Those parameters are rotor input power or total input power drawn by the motor at a particular operating slip, then a stator input power, then a rotor losses, stator losses, efficiency, slip value, operating power factor. These are the various parameters you can determine with the help of circle diagram. नेक्स्ट सवाल पूछे जाते हैं, आउटपुट पावर लाइन क्या होता है, सर्कल डायग्राम का डायमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, टॉर्क लाइन क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, इन दिस सर्कल डायग्राम this AF length, if you can see this AF length represents torque line और induced torque line। क्यों कहते हैं induced torque line, इसको भी आप देखेंगे। देखिए, ऑपरेटिंग पॉइंट P से R तक का जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स रोटर इनपुट पावर और PAG ऑन पावर स्केल। यू नो, टॉर्क इज इक्वल टू 60/2 पाई NS multiplied by PAG, means induced torque in induction machine is proportional to air gap power or rotor input power. See, if you measure this PR length and multiply it with power scale, you will get PAG value. If you multiply this PAG by this number 60/2 pi NS, you will get this torque. आप टॉर्क obtain करेंगे and see this PR length would give what, the PAG value on power scale, and if PAG is multiplied by 60/2 pi NS, you will get torque. So this AF line is called or is known as induced torque line, as any vertical line above the AF line is proportional to PAG and induced torque is proportional to PAG or rotor input power. Okay, next. So AF line को क्या ध्यान रखेंगे, AF line को क्या कहेंगे, induced torque line. So torque line जो है वो वेरिएबल लॉसेस को डिवाइड करता है दो पार्ट में। टॉर्क लाइन जो है वेरिएबल लॉसेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, रोटर कॉपर लॉस और स्टेटर कॉपर लॉस में। किस रेशियो में, R2:R1 रेशियो में। नेक्स्ट, ये AC लाइन पर कंसीडर करिए। AC लाइन इज योर रोटर इक्विवेलेंट करंट when slip S is equal to unity, when rotor is locked, when rotor is blocked. AC लाइन के वर्टिकल में कोई भी आप लाइन ड्रॉ करें, लाइक एट ऑपरेटिंग पॉइंट P, PQ line you consider. PQ line represents what? Output power.
mechanical developed output power. So any line above this AC line on power scale, or any vertical line above this AC line on power scale represents output power line or output power. So this AC line is called output power line, means line joining the tip of the I naught current to the circumference of the circle diagram at slip S is equal to unity represents आउटपुट पावर लाइन. देखिए कहीं भी ये ऑपरेटिंग पॉइंट P पर कंसीडर किए, किसी दूसरे स्लिप पर आप देखेंगे ये लेंथ आप मेजर करेंगे किसी दूसरे स्लिप पर से S इक्वल टू 0.5 पर, ये लेंथ मेजर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप पावर स्केल से, ये लेंथ क्या देगा, आउटपुट पावर देगा. उस तरह से ये लेंथ आप मेजर करना चाहते हैं, ये लेंथ मेजर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे पावर स्केल से, क्या मिलेगा आपको, रोटर इनपुट पावर और एयर गैप पावर मिलेगा. सो दैट आप टॉर्क भी मालूम कर सकते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग द एयर गैप पावर बाय द नंबर 60 by 2 pi ns. अब बात करते हैं डायामीटर का. डायामीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायामीटर ऑफ द सर्कल डायग्राम रिप्रेजेंट्स द rotor equivalent current which is given by supply voltage by net reactance of the machine. Okay, so this is all about the circle diagram of three-phase induction machine. Thank you for this particular session. Hope everything is clear to you and you will utilize this concept while answering the problems from the circle diagram whenever it is asked in any exam. So thanks for watching this video. If contents are really beneficial to you, please do like, share and subscribe. And information के लिए आपको बताएं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए रेगुलरली वीडियोस अपलोड किए जाएंगे हमारे चैनल पर. So please keep connected to our channel for your benefits only. Thank you again.